لکھنؤ کے محلہ گلگنج میں اگر کوئی اپنی داستان گوئی اور لفاظی کے لیے مشہور تھا تو وہ تھے میر باقر علی۔ میر صاحب کے پاس دنیا کی ہر اس چیز کا دعویٰ تھا جو ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والے جانتے تھے کہ اگر میر صاحب کہیں کہ انہوں نے ہاتھی کو جیب گھڑی کی طرح گونجتے دیکھا ہے تو بس سبحان اللہ کہہ کر سر جھکا لینا ہی عافیت ہے۔ میر صاحب کا قد ذرا کوتا تھا مگر ان کی باتیں ہمالیہ سے بلند تھیں۔ ان کا جبہ ریشمی، ان کی دستار ٹیڑھی اور ان کی زبان قینچی کی طرح چلتی تھی جو سچ اور جھوٹ کے درمیان کے فاصلے کو سیکنڈوں میں ختم کر دیتی۔ ایک دوپہر جب بستی کے شرفا نیم کے درخت تلے جمع تھے، میر صاحب نے پان کی گلوری منہ میں دبائی اور بولے، میاں وہ تو کہیے کہ ہم نے شاہ ایران کو خط لکھ کر منع کر دیا، ورنہ وہ تو اپنی آدھی سلطنت ہمارے نام کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، حضور ہم فقیر منش لوگ ہیں، ہمیں تاج و تخت سے کیا لینا دینا۔ محفل میں ایک دبیز خاموشی چھا گئی مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ میر صاحب کی اس ہوائی قلعے بازی کو چیلنج کرے۔ اسی محفل میں ایک کونا پکڑے ایک بوڑھا موچی بیٹھا تھا جسے لوگ کریم و بابا کہتے تھے۔ کریم و بابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ میر صاحب کے پاؤں میں پڑے پرانے اور پھٹے ہوئے جوتے کو دیکھ رہا تھا جو میر صاحب کی شاہانہ باتوں کا منہ چڑھا رہے تھے۔ میر صاحب شہنشاہوں کی باتیں اور یہ بوسیدہ جوتا کچھ جچتا نہیں، کریموں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میر صاحب کا پارا چڑھ گیا، ارے اکمبخت، یہ جوتا نہیں، یہ تو ایک نادر تبرک ہے جو ہم نے یونان کے ایک قدیم مندر سے خریدا تھا۔ کریمو مسکرایا اور بولا، اگر ایسی بات ہے میر صاحب تو کل میرے پاس آئیے گا، میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص جوتا تیار کروں گا جو بالکل آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگا، یعنی جو آپ کے سچ اور جھوٹ کی پہچان کرے گا۔ میر صاحب نے طیش میں آ کر حامی تو بھر لی مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کریم و بابا نے اس جوتے میں کون سی جادوئی مٹی گوند رکھی تھی۔ اگلے روز سورج ابھی پوری طرح ڈھلا بھی نہ تھا کہ میر صاحب کریم و موچی کی دکان پر جا دھمکے۔ ان کے دل میں ایک طرف نیا جوتا پہننے کا شوق تھا اور دوسری طرف یہ غرور کہ دیکھوں تو صحیح یہ ادنا موچی ایسا کیا شاہکار بناتا ہے۔ کریموں نے ایک مخملی کپڑے میں لپٹا ہوا جوتا نکالا۔ یہ جوتا چمڑے کا نہیں بلکہ کسی نایاب دھات کی طرح چمک رہا تھا مگر اس کی ساخت ایسی تھی کہ جیسے وہ ہر لمحہ آپ کی بات سننے کے لیے ہمہ تن گوش ہو۔ لیجئے میر صاحب، یہ رہا آپ کا گویا جوتا۔ کریموں نے جوتا میر صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے نہایت ادب سے کہا، اس کی ایک ہی خصوصیت ہے، جب تک آپ سچ بولیں گے یہ جوتا مکھن کی طرح نرم رہے گا اور آپ کو ہوا میں اڑنے کا احساس دے گا۔ لیکن کریمو ذرا رکا اور مانی خیزی سے مسکرایا، جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہ ہوا تو یہ جوتا اپنی زبان کھول دے گا اور ایسی چیخ مارے گا کہ بستی کے کتے بھی ہکا بکا رہ جائیں گے۔ میر صاحب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، میاں کریمو تم بھی کس سادہ لوح سے پالا پڑھنے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم اور جھوٹ؟ ارے صاحب ہم نے تو کبھی خواب میں بھی مبالغہ آرائی نہیں کی۔ جیسے ہی میر صاحب نے یہ جملہ ادا کیا، ابھی جوتا پہنا بھی نہیں تھا کہ اس مخملی کپڑے کے اندر سے ایک باریک اور تیکھی سی ٹیں ٹیں کی آواز آئی۔ میر صاحب چونکے، یہ کیا تھا؟ کریموں نے معصومیت سے کندھے اچکائے، صاحب جوتے نے ابھی سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ میر صاحب نے دل ہی دل میں خود کو کوسا مگر نیا جوتا پہننے کی ہوس غالب آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے جوتا پہنا انہیں ایسا لگا جیسے وہ بادلوں پر چل رہے ہوں۔ وہ اکڑ کر دکان سے باہر نکلے اور سیدھے محلے کی اسی نیم والی محفل کی طرف بڑھے جہاں آج شہر کے بڑے بڑے عمائدین جمع تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ آج اس نئے جوتے کی چمک سے سب کی آنکھیں چندھیا دیں گے مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کی زبان اور ان کے پاؤں کے درمیان اب ایک ایسا جاسوس موجود تھا جو کسی رعایت کا قائل نہ تھا۔ محفل کے قریب پہنچتے ہی میر صاحب نے گلا صاف کیا اور ایک نئی کہانی کی بنیاد رکھنے ہی والے تھے کہ جوتے نے ایک زوردار انگڑائی لی۔ میر صاحب محفل کے عین وسط میں پہنچے تو سب کی نظریں ان کے چمکدار جوتوں پر ٹھہر گئیں۔ آج میر صاحب کی دستار کچھ زیادہ ہی ترچھی تھی اور ان کے چہرے پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو کسی قلعہ فتح کرنے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ خان بہادر نے پوچھا، میر صاحب آج تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، خیریت تو ہے؟ میر صاحب نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اپنے جوتے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، خان صاحب کیا بتائیں، بس ابھی ابھی شاہی استبل سے ہو کر آ رہا ہوں۔ نواب صاحب کا وہ نیا عربی گھوڑا جو کسی سے قابو نہیں آ رہا تھا، ہم نے اسے صرف ایک نگاہ غلط انداز سے ایسا رام کیا کہ اب وہ ہمارے قدم چومتا ہے۔
अभी मीर साहब का जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि अचानक इनके बाएं पांव से एक ऐसी आवाज निकली जैसे किसी ने बहुत सारे सूखे पापड़ एक साथ तोड़ दिए हों। कुड़ कुड़ कुड़, कड़ाक। और फिर एक बारीक सी आवाज गूंजी, झूठ नंबर 1। महफिल में सन्नाटा छा गया। खान बहादुर ने चौंक कर इधर उधर देखा। ये कैसी आवाज थी मीर साहब? मीर साहब का रंग फक हो गया। उन्होंने जल्दी से अपना पांव फर्श पर रगड़ा। कुछ नहीं खान साहब, वो जरा हड्डी चटकने की आवाज थी, पुरानी चोट है ना। अभी उन्होंने पुरानी चोट का जिक्र किया ही था कि अब के दायां जूता बोल पड़ा, टें टें। झूठ नंबर 2, आप तो घोड़े के करीब भी नहीं गए, बल्कि डर के मारे गली के नुक्कड़ से वापस आ गए थे। अब तो महफिल में कहकाह लग गया। मीर साहब शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहे थे, मगर अपनी आदत से मजबूर बात को संभालने के लिए एक और पैंतरा बदला। अरे भाई, ये जूता थोड़ा शौक है, दरअसल ये यूनानी जबान में बात करता है, आप लोग इसका मतलब गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि अभी मीर साहब ने अगला उज्र तराशना ही चाहा कि दोनों जूतों ने मिलकर एक ऐसा कोरस शुरू किया कि पूरे मोहल्ले के परिंदे उड़ गए। पौ वै पै वै पे वै, सरासर झूठ, सरासर मुबालगा। मीर साहब भागने की कोशिश करते, मगर ज्यों ही वो तेज चलते, जूता इतनी ही जोर से चीखता, चोर की दाढ़ी में तिनका, मियां लफ्जनी बंद करो। लोग हंसते हंसते लोट-पोट हो रहे थे और मीर साहब नंगे पांव भागने के चक्कर में थे, मगर जूता पांव से ऐसा चिमटा था जैसे रूह जिस्म से। वो गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागे, जबकि पीछे से आवाजें आ रही थीं, मीर साहब, घोड़े का हाल तो सुनाते जाइए। मीर साहब हाँपते कांपते अपने दीवान खाने में दाखिल हुए और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। उनका सांस फूला हुआ था और माथे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। तौबा है मेरे मौला, ये जूता है या कोई बला? उन्होंने कराहते हुए कहा। अभी उन्होंने जूता उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनकी बेगम जबीदा खातून पानदान लिए कमरे में दाखिल हुईं। जबीदा बेगम ज़रा सख्त मिजाज खातून थीं और मीर साहब की लावजनी से बखूबी वाकिफ थीं। खैर तो है मीर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले के लोंडों ने पीछे कुत्ता छोड़ दिया हो। और ये आपके पाँव से कैसी साएं साएं की आवाज़ें आ रही हैं? मीर साहब ने फौरन एक मजलूमाना सूरत बनाई। बेगम, क्या बताएं, आज रस्ते में एक गरीब बेवा की मदद कर दी, बस उसी की दुआओं का बोझ है जो पाँव भारी हो रहे हैं। मैंने तो अपनी जेब से पूरे 50 रुपए निकाल कर उसे दे दिए। अभी 50 रुपए की बाज़गश्त ख़त्म ना हुई थी कि फर्श पर पड़े जूते ने यकदम एक लंबी सीटी मारी, पैंग, और फिर गोया हुआ, सफ़ेद झूठ, आपने तो रास्ते में पड़े हुए 2 आने भी खुद उठाकर जेब में डाल लिए थे। 50 रुपए तो दूर की बात है। जबीदा बेगम की आंखें हैरत से फैल गईं। मीर साहब, ये कौन बोला? मीर साहब हकलाकर बोले, वो बेगम, ये दरअसल एक नया परिंदा है जो मैंने खरीदा है, बातूनी तोता है, बस पाँव के पास छुपा रखा है। अभी उन्होंने तोते का उज्र पेश किया ही था कि जूते ने दूसरा वार किया। टैं टैं, झूठ की इंतहा, मैं तोता नहीं, मैं तुम्हारे करतूतों का गवाह हूँ। बेगम साहिबा, कल जो उन्होंने कहा था कि इनकी तनख्वाह चोर ले गए, वो असल में उन्होंने जुआ खाने में हारी थी। अब तो जबीदा बेगम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, तो ये चोर आप खुद ही थे? उन्होंने जूता उठाकर मीर साहब की तरफ रुख किया। मीर साहब जान बचाने के लिए पलंग के नीचे घुसने लगे, मगर जूता पांव से अलग होने का नाम ना लेता था। वो जितना छुपते, जूता उतना ही जोर से उल्टी गिनती शुरू कर देता। 10 सेकंड में एक और झूठ आने वाला है, होशियार। मीर साहब ने हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए खामोश हो जाए जूते, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मगर जूते का उसूल अटल था, जबान हिलेगी तो राज खुलेगा। मीर साहब की रात आंखों में कटी। जुबैदा बेगम के ताने और जूते की टी टी ने उनका सुख चैन गारत कर दिया था। सुबह के धुंधलिके में जो बस्ती अभी जागी न थी, मीर साहब ने एक कंबल ओढ़ा और दबे पांव हवेली के पिछवाड़े मौजूद पुराने कुएं की तरफ बढ़े। उनका इरादा पक्का था, इस फितने को गहरे पानी की नज़र करना है ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। कुएं के मुंडेर पर खड़े होकर मीर साहब ने इधर उधर देखा, फिजा पर सकूत तारी था। उन्होंने जूते का तस्मा खोलने की कोशिश की, मगर वो पांव से ऐसे चिमटा था जैसे गोश्त से नाखून। कमबख्त, खुलता क्यों नहीं? उन्होंने झुंझला कर कहा। ए जूते मियाँ, देखो, तुम मेरे पाँव में रहकर तंग हो गए होगे, चलो तुम्हें ठंडे पानी की सैर करवाते हैं। जूते से फौरन एक करख्ता आवाज़ निकली, घड़ घड़ घड़। झूठ नंबर 51, आप तो मुझे ठंडे पानी की सैर नहीं बल्कि कत्ल करने लाए हैं। याद रखिए मीर साहब, मैं पानी में भी नहीं डूबूंगा, उल्टा वो मछलियां भी बोल पड़ेंगी जिन्हें आपने पिछले साल मगरमच्छ बनाकर पेश किया था। मीर साहब के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने गुस्से में आकर पांव जोर से कुएं की दीवार पर मारा। तो क्या मैं उम्र भर तेरा कैदी रहूंगा? जूते ने सकून से जवाब दिया,
जब तक ज़बान से सच का चश्मा नहीं फूटेगा मैं तुम्हारे पाँव की जंजीर रहूँगा। इसी असना में बस्ती का चौकीदार वहाँ से गुजरा। मीर साहब को कुएं से बातें करते देखकर वो ठिठक गया। मीर साहब, खैरियत तो है? क्या कुएं में जिन्नात से गुफ्तगू फरमा रहे हैं? चौकीदार ने हैरत से पूछा। मीर साहब ने फौरन पैंतरा बदला। अरे नहीं मियाँ, हम तो बस पानी की गहराई का अंदाज़ा लगा रहे थे ताकि यहाँ बस्ती के लिए एक बड़ा नलका लगवा सकें। हमारा इरादा है कि पूरे लखनऊ को मुफ्त पानी पिलाएं। अभी मुफ्त पानी का लफ्ज़ फिज़ा में गूंजा ही था कि जूते ने ऐसी ज़ोरदार आवाज़ निकाली जैसे कोई तोप दागी गई हो। भड़ाक, झूठ का धमाका। मियाँ, तुम्हारे अपने घर का पानी का बिल 2 साल से बाकी है, तुम लखनऊ को क्या पिलाओगे? चौकीदार हक्का बक्का रह गया और मीर साहब अपना सर पीट कर वहीं बैठ गए। उन्हें समझ आ गई थी कि ये जूता उनका साया बन चुका है जो सिर्फ उनकी खामोशी या सच्चाई से ही दब सकता है। मीर साहब अभी कुएं की जिल्लत से संभल भी न पाए थे कि शहर के काजी का सिपाही घर आन पहुंचा। मीर बाकिर अली, आपको काजी साहब ने फौरन अदालत में तलब किया है। मियाँ बख्श और पीरू के दरमियान जमीन का जो झगड़ा चल रहा है, आप उसके चश्मदीद गवाह मुकर्रर हुए हैं। मीर साहब का कलेजा हल्क को आ गया। वो जानते थे कि उन्होंने मियाँ बख्श से 500 रुपये रिश्वत ले रखी थी ताकि अदालत में झूठी गवाही देकर पीरू की जमीन हथिया लें। भाई, हम तो बीमार हैं, सख्त हलील हैं। मीर साहब ने पेट पकड़कर एक दर्दनाक आह भरी। अभी बीमार का लफ्ज निकला ही था कि उनके दाएं जूते ने एक लंबी तंजिया हंसी का राग छेड़ा। हा 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 हा, झूठ की इंतहा। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कुएं पर भंगड़े डाल रहे थे, अब अचानक पेट में मरोड़ उठाए। सिपाही ने हैरत से मीर साहब के पांव की तरफ देखा। मीर साहब ने जल्दी से पांव चादर में छुपा लिया और गिरते पड़ते अदालत की तरफ रवाना हुए। अदालत में तिल धरने की जगह न थी। काजी साहब ने ऐनक नाक पर टिकाई और गरजदार आवाज में पूछा, मीर बाकिर अली, हल्फन बताइए कि आपने पीरू को मियाँ बख्श के सामने कागजात पर अंगूठा लगाते देखा था? मीर साहब ने मियाँ बख्श की तरफ देखा जो जेब में हाथ डालकर नोटों की गद्दी का इशारा कर रहा था। मीर साहब ने जबान खोली। हुजूर, मैंने अपनी इन मुबारक आंखों से देखा कि पीरू ने निहायत खुशी से अपनी जमीन मियाँ बख्श के नाम कर दी। अभी खुशी का लफ्ज फजा में था कि जूतों ने एक ऐसा हंगामा बर्पा किया कि काजी साहब की कुर्सी हिल गई। पोएं पोएं टी, ये आंखें मुबारक नहीं, अयार हैं। हुजूर, मीर साहब तो उस वक्त सो रहे थे जब ये वाकया हुआ और मियाँ बख्श ने इन्हें 500 रुपए देकर ये झूठ बकने पर तैयार किया है। पूरी अदालत में एक शोर मच गया। मियाँ बख्श का रंग पीला पड़ गया और काजी साहब ने गुस्से में हथौड़ा मेज पर मारा। मीर साहब, ये आवाज कहां से आ रही है? मीर साहब ने हकलाकर कहा, हुजूर, ये मेरे पेट की आवाज है। सुबह से कुछ खाया नहीं ना, तो भूख के मारे आंतें कल अल्लाह पड़ रही हैं। जूता फिर गूंजा। आंतें नहीं, जमीर बोल रहा है। काजी साहब, इनकी जेब तलाशी लीजिए, 500 रुपए अभी वहीं मौजूद हैं। जब तलाशी ली गई तो नोटों की गद्दी बरामद हो गई। काजी साहब ने मीर साहब पर भारी जुर्माना आयद किया और उन्हें अदालत से बाहर निकलने का हुक्म दिया। मीर साहब जब बाहर निकले तो लोग उन पर तालियां बजा रहे थे और जूता हर कदम पर एक नया इंकिशाफ कर रहा था। देखो, ये है लखनऊ का सबसे बड़ा लाफजन। मीर साहब की इज्जत अब लखनऊ के बाजारों में उस पुराने वर्क की तरह अड़ रही थी जिसे गली के बच्चे पैरों तले रौंदते हैं। थक हार कर जिल्लत के बोझ से लादे हुए मीर साहब ने शहर की हदूद छोड़ दी और एक घने जंगल का रुख किया। उनका ख्याल था कि जहां इंसान नहीं होंगे वहां जूते की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा और शायद खामोशी में ये बला मेरा पीछा छोड़ दे। जंगल में पहुंचकर एक घनी झाड़ी के पीछे मीर साहब हाँपते हुए बैठ गए। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मीर साहब ने आसमान की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरी। शुक्र है, यहां कोई तमाशाई नहीं। ऐ जूते, अब तो खुश हो, मैंने सब कुछ खो दिया। अब यहां न कोई काजी है, न मेरी बेगम और ना ही मियाँ बख्श। अब तो मुझे सुकून लेने दे। जूते से एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, टी। मीर साहब, इंसानों से तो भाग सकते हो, मगर अपनी फितरत से कैसे भागोगे? तन्हाई में झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि वहां तुम्हारा सामे सिर्फ तुम्हारा खुदा और तुम्हारा नफ्स होता है। मीर साहब ने झुंझलाकर एक पत्थर उठाया और अपने पांव पर मारने ही वाले थे कि दूर से किसी के रोने की आवाज आई। वो दबे पांव इस तरफ बढ़े तो देखा कि एक लकड़हारा जमीन पर बैठा सर पीट रहा है
और उसके पास एक मरा हुआ गधा पड़ा है। मीर साहब की पुरानी आदत ने फिर अंगड़ाई ली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गरीब को बेवकूफ़ बनाकर कुछ तफरीह की जाए। वो सीना तान कर लकड़हारे के पास पहुंचे और गरज कर बोले, अरे ओ मियाँ, क्यों रोते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस जंगल का मुकर्रर करदा जानवरों का हकीम हूँ? मैंने तो अभी कल ही एक मुर्दा शेर को सिंघनी के दूध से जिंदा किया है। हटो, मैं तुम्हारे गधे को अभी अपनी फूंक से खड़ा कर देता हूँ। लकड़हारे ने उम्मीद भरी नजरों से मीर साहब को देखा, मगर अभी मीर साहब अपनी झूठी फूंक मारने ही वाले थे कि जूतों ने एक ऐसा तीखा शोर मचाया कि पूरे जंगल के परिंदे चीखते हुए उड़ गए। काएं काएं काएं, झूठ का पलंदा, मीर साहब को तो सुई में धागा डालना नहीं आता, ये गधा क्या जिंदा करेंगे? ये तो खुद अपने साए से डरकर यहाँ छिपने आए हैं। लकड़हारा गुस्से में खड़ा हो गया। ओए मक्खनबाज, तू मेरे दुख का मजाक उड़ाने आया है? उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मीर साहब के पीछे दौड़ा। मीर साहब नंगे सर जंगल की झाड़ियों में कांटे चुभवाते हुए भाग रहे थे और जूता हर छलांग पर चीख रहा था, और तेज भागो मीर साहब, झूठ की रफ्तार कुल्हाड़ी से तेज होनी चाहिए। जंगल की खारदार झाड़ियों से बचते बचते मीर साहब का कीमती जुब्बा तार तार हो चुका था, और इनकी वो मगरूर दस्तार जो कभी आसमान से बातें करती थी, अब किसी कटे हुए पतंग की तरह खाक में रुल रही थी। लकड़हारे की कुल्हाड़ी से तो वो बच निकले, मगर अपने ही जूते की आवाज़ ने इनके होश ठिकाने लगा दिए थे। वो थक कर एक नदी के किनारे बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लगे। इनके आंसू मिट्टी पर गिरे तो जूता, जो अब तक शोर मचा रहा था, अचानक खामोश हो गया। आए करीमो मोची के बनाए हुए अजाब, अब तू क्यों चुप है? मीर साहब ने हिचकियों के दरमियान पूछा, क्या अब तेरे पास मेरी रुसवाई का कोई नया इश्तिहार नहीं? जूते से एक इंतहाई नरम और सूज भरी आवाज़ आई, टै मीर साहब, जब इंसान के दिल से निदामत का पहला आंसू टपकता है तो कुदरत के सब पहरेदार खामोश हो जाते हैं। मैं शोर मचाने नहीं, तुम्हें खुद से मिलवाने आया था। तुमने लोगों को तो धोखा दिया, मगर अपनी रूह को जख्मी कर लिया। देखो, तुम्हारे पांव जख्मी हैं क्योंकि तुम गलत रास्ते पर दौड़ रहे थे। मीर साहब को पहली बार अपने किए पर सच्ची शर्मिंदगी महसूस हुई। इन्हें याद आया कि किस तरह इन्होंने झूठी शान दिखाने के लिए दोस्तों का दिल दुखाया, बेगम से झूठ बोला और अदालत में अपना ईमान बेचा। इन्हें वो सारी लाफजनी एक बदसूरत बोझ लगने लगी। इन्होंने पक्का इरादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी ज़बान से सिर्फ सच निकालेंगे। वो इसी हालत में उठे और नंगे सर गिरते पड़ते बस्ती की तरफ रवाना हुए। बस्ती के लोग इन्हें इस हाल में देखकर हंसने लगे, मगर मीर साहब ने आज किसी की हंसी का बुरा नहीं माना। वो सीधे करीमू मोची की दुकान पर पहुंचे। करीमू उसी तरह अपने चाक पर बैठा एक पुराने जूते को टांके लगा रहा था। मीर साहब उसके कदमों में गिर पड़े और रोकर बोले, करीमू बाबा, ये जूता उतार दो, मैं हार गया, मेरी लाफजनी खत्म हो गई। मैं अब वो मीर बाकिर नहीं रहना चाहता जो हवा में किले बनाता है। मुझे ज़मीन पर रहना सिखा दो। करीमू बाबा मुस्कुराए और उन्होंने झुककर मीर साहब के जूते को सिर्फ एक बार छुआ। वो जूता जो हथकड़ी की तरह जकड़ा हुआ था, मक्खन की तरह पांव से अलग हो गया। मीर साहब, जूता तो उतर गया, मगर क्या झूठ का वो भूत भी उतर गया जो बरसों से तुम्हारे सर पर सवार था? मीर साहब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बुलंद आवाज में कहा, करीमो बाबा, आज से मीर बाकिर की ज़बान सिर्फ वही कहेगी जो इसकी आंखों ने देखा और इसके दिल ने महसूस किया। मीर साहब जब करीमो मोची की दुकान से बाहर निकले तो उनके पांव नंगे थे, मगर उनका दिल किसी बोझ से आज़ाद हो चुका था। बस्ती के लोग अभी तक वही पुराना तमाशा देखने के मुंतज़िर थे, मगर आज मीर साहब के चेहरे पर वो मसनूई जलाल नहीं, बल्कि एक अजीब सा इनकिसार था। वो सीधे नीम के दरख्त वाली महफिल में पहुंचे, जहां अब भी वही यार बेली बैठे मीर साहब की दरगत का मजाक उड़ा रहे थे। आइए मीर साहब, आइए, खान बहादुर ने कहकहा लगाया। सुना है आजकल आपके जूते भी आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। मीर साहब ने गहरी सांस ली और सबके सामने ज़मीन पर बैठ गए। खान साहब, मेरा जूता सच बोलता था, मगर मैं झूठ बोलता था। आज मैं ये तस्लीम करने आया हूं कि मैंने अब तक जितने किस्से सुनाए वो सब मेरी अपनी अना के तराशे हुए बुत थे। न मैं किसी नवाब का मुशीर हूं, न मैंने कोई किला फतह किया है। मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूं जो अपनी औकात से बढ़कर दिखना चाहता था। महफिल में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी न था कि लखनऊ का सबसे बड़ा लाफजन इस तरह सरेआम अपनी पगड़ी खुद अपने हाथों से उतार देगा। मीर साहब बोलते गए। उन्होंने पीरों की ज़मीन के झूठे कागजात से लेकर बेगम से किए गए हर झूठ का एतराफ़ किया। जैसे जैसे वो सच बोल रहे थे, बस्ती वालों के चेहरों से तमस्खुर गायब होता गया
اور ان کی جگہ احترام نے لے لی۔ سچائی میں ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے جو بڑے سے بڑے مذاق کو سنجیدگی میں بدل دیتی ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے زبیدہ بیگم کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ بیگم، جو برسوں سے ان کی لاو زنی سے نالاں تھیں، آج اپنے شوہر کی اس ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے پہلی بار میر صاحب کے لیے پیار سے پان بنایا۔ میر صاحب نے وہ جادوئی جوتا کریمو بابا کو واپس کر دیا، مگر کریمو نے اسے الماری میں سجا دیا اور اس پر ایک تختی لگا دی، ان کے لیے جن کی زبان ان کے پاؤں سے تیز چلتی ہے۔ میر صاحب اب بدل چکے تھے۔ اب وہ جب بھی کوئی بات کرتے، لوگ اسے غور سے سنتے، کیونکہ اب ان کے الفاظ میں مبالغہ آرائی کا نمک نہیں بلکہ حقیقت کی مٹھاس تھی۔ وہ جوتا اب خاموش تھا، مگر اس نے میر صاحب کی زندگی میں ایک ایسا شور برپا کر دیا تھا جس نے ان کی روح کو بیدار کر دیا۔ لکھنؤ کی گلیوں میں آج بھی میر صاحب کے جوتے کی داستان سنائی جاتی ہے، مگر اب یہ مذاق کے لیے نہیں بلکہ اس سبق کے لیے ہے کہ سچ چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، انسان کو معتبر بنا دیتا ہے۔